Hello everyone, welcome to the Needle Magic. Today we are going to make this cute little AirPod pocket. तो जैसे कि आपको पता है कि हर जगह पे आईफोन पॉकेट ट्रेंडिंग जा रहा है, तो मुझे लगा कि क्यों ना हम एयरपॉड्स के लिए भी मिनी पॉकेट तैयार करें। ये देखिए, ये इसके अंदर ये आपके एयरपॉड्स आ जाते हैं और ये क्यूट लिटिल पॉकेट मैंने सोचा कि सेम उसी तरीके से मिनी वर्जन बनाया जाए एयरपॉड्स के लिए. सो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ मिनी वर्जन ऑफ द iPhone pocket for my AirPods. So I hope you like the tutorial. Let's get started. Let's start by making a slip knot first. सबसे पहले हम एक slip knot बनाएंगे. And now you'll be chaining 26. अब हमें 26 chains बनानी है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 and 26. So we have made 26 chains. हमने 26 chains बना लिए. Now we need to go into the second chain from hook. तो जो hook से second chain है हम उसमें single crochet stitch बनाएंगे. So we'll make a single crochet stitch in the second chain from hook and we'll be working in the बैक बम्प्स ऑफ आर चेन. तो अगर आप अपनी फाउंडेशन चेन को ऐसे ट्विस्ट करोगे, इफ़ यू रोटेट योर फाउंडेशन चेन, यू विल बी एबल टू सी दीज बैक बम्प्स एंड विल बी वर्किंग इन दीज बैक बम्प्स टू गिव अ नीटर फिनिश. तो इससे क्या होता है, एक नीट फिनिश आती है. सो विल गो इन टू द बैक बम्प ऑफ आर सेकेंड चेन फ्रॉम हुक. yarn over, pull up a loop. You'll have 2 loops on your needle. Yarn over, pull through both the loops. So here we have done a single crochet stitch, 1 single crochet stitch into the next chain, 1 single crochet stitch into the next, 1 single crochet stitch into the next, and we need to repeat this until we reach the end of our foundation chain. तो हमने इसी तरीके से हर एक चेन में एक एक single crochet stitch करते जाना है. So we need to just keep doing 1 single crochet stitch in each of these chains that we have, and by the end of row number 1 we'll have a total of 25 single crochet stitches. तो इस रो की एंड में हमारे पास 25 single crochet stitches होंगी. So we have to just keep doing 1 single crochet stitch in each of these following chains that we have and complete row number 1. So here I have completed row number 1 by doing 1 single crochet stitch in each of the chains that I had. मैंने हर एक चेन में एक एक single crochet stitch करके row 1 complete कर लिया है. Now let's start with row number 2. row number 2 start करते हैं. chain 1, turn your work. chain 1 करके अपना work turn करेंगे. And now you can see these V's. This is the front loop and this is the back loop. Now we need to work only in the back loops of our stitches. तो जो ये stitches का back loop है, हमने अब सिर्फ इन्हीं में काम करना है. ये फ्रंट लूप में नहीं काम करेंगे, हम सिर्फ बैक लूप में काम करेंगे. तो अपनी नीडल को सिर्फ बैक लूप में डालेंगे. सो वी हैव टू वर्क ओनली इन द बैक लूप्स नाउ. एंड रो नंबर 2 टू रो नंबर 4 विल बी द सेम. रो नंबर 2 3 और 4 सेम रहने वाली है. सो वी हैव टू जस्ट गो इन टू द बैक लूप ऑफ ईच स्टिच एंड मेक अ सिंगल क्रोशे स्टिच. तो हर एक स्टिच की बैक लूप में हम जाएंगे और एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच हम करते जाएंगे. और यही पैटर्न हमने रिपीट करना है रो 2, रो 3 और रो नंबर 4 के लिए. सो रो 2, 3 and 4 will be the same. We have to just keep doing 1 single crochet stitch in each of the stitch that we have and we have to work only in the back loops of the stitches. तो हमें सिर्फ back loops में काम करना है और हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच हमने करते जाना है. तो 2, 3 और 4 हमने इसी तरीके से करना है. तो मैं ये 3 जो रोज़ हैं इसे कंप्लीट करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ आगे हमने क्या करना है. सो आई विल कंप्लीट रो नंबर 2, 3 and 4 by doing 1 single crochet stitch in each of the following stitches that I have and I'll be working in the back loops. And once I complete row number 4 then I'll meet you back here to show you what to do next. तो मैं ये कंप्लीट करके 3 रोज़ आपको बताती हूँ आगे हमने क्या करना है. तो मैंने रो नंबर 2, 3 और 4 कंप्लीट कर लिया है. आई हैव कंप्लीटेड रो नंबर 2, 3 and 4 by doing 1 single crochet stitch in each of the stitches that I had and I have worked only in the back loops. मैंने सिर्फ back loops में काम किया है.
और मैंने हर एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशे स्टिच कर लिया है. एंड रो नंबर 5 इज़ ऑल्सो द सेम पैटर्न. रो नंबर 5 का भी सेम पैटर्न है जो हम अभी करने वाले हैं. रो नंबर 5. लेट्स स्टार्ट विथ रो नंबर 5. इट्स द सेम पैटर्न. यू हैव टू चेन 1, turn your work and do 1 single crochet stitch in each of the stitches that you have, and you have to work only in the back loops. तो सिर्फ बैक लूप्स में हम काम करेंगे. हर एक स्टिच की बैक लूप में एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच हम करते जाएंगे. इससे हमारी ये रो नंबर 5 भी हो जाएगी कंप्लीट. सो दिस इज़ द पैटर्न फॉर रो नंबर 5 ऑल्सो. द सेम दैट वी डिड फॉर रो नंबर 2, 3 एंड 4 वी आर रिपीटिंग फॉर रो नंबर 5. तो जो 2, 3 और 4 रोज में हमने किया था वही हम रो नंबर 5 में भी रिपीट कर रहे हैं. So I've completed row number 5. मैंने रो नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है. एक एक स्टिच में मैंने बैक लूप में एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच कर लिया है. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ रो नंबर 6. रो नंबर 6 इज़ अ लिटिल डिफरेंट. रो नंबर 6 जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है. चेन 1, टर्न योर वर्क, एंड हियर वी हैव टू डू 1 single crochet stitch in the first 12 stitches. We are working in the back loops only now here also, but we have to work only in the first 12 stitches. तो पहली 12 stitches में हम एक एक single crochet stitch कर लेंगे back loop में. So we'll go into the first stitch, 1 single crochet stitch, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. So here we have done 12 single crochet stitches in the 12 stitches that we had, first 12 stitches. Now we have to chain 9. अब हमें 9 chains बनानी है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Now we have to skip 9 stitches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, and we are left with the last 4 stitches. Last 4 stitches हमारी रह गई. We'll be doing 1 single crochet stitch in each of these 4 stitches. तो हर एक स्टिच में जो 4 stitches हमारी बच गई हैं हम इसमें एक एक single crochet stitch करते जाएंगे. So we'll go into the stitch. We are going into the back loops only here also. यहाँ पे भी हम सिर्फ back loops में काम कर रहे हैं. And here last stitch that we have completed row number 6 now. तो row number 6 हमारा complete हो गया है. Now chain 1, turn your work. chain 1 करके अपना work turn करेंगे. And now row number 7, 8, 9, 10 and 11. We have to just do 1 single crochet stitch all over until we reach the end. तो हमें सिर्फ एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच हर एक स्टिच की बैक लूप में करते जाना है. तो पहले तो ये 4 स्टिचेस में हम करेंगे. We'll do 1 single crochet stitch in each of these 4 stitches that we have. उसके बाद हमारी ये जो चेन है 9 जो हमने चेन्स बनाई थी इसमें एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे. सो वी हैव दीज 9 chains. We'll work 1 single crochet stitch in each of these chains that we have. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Then we have these 12 stitches. ये हमारे पास यहाँ पे 12 stitches हैं. इनमें भी हम एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच बैक लूप में करते जाएंगे. सो वील वर्क 1 single crochet stitch in each of the back loops of these stitches that we have. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. And this completes row number 7. row number 7 हमारी complete हो गई है. row number 8, 9, 10, 11 में हमने सिर्फ एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच बैक लूप में करते जाना है. chain 1, turn your work and 1 single crochet stitch in each of the stitches that you have, working in the back loops.
तो बैक लूप्स में हम एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच करते जाएंगे. दिस इज रो नंबर 8 एंड वी हैव टू फॉलो दिस पैटर्न until we complete रो नंबर 11. तो रो नंबर 11 तक हमने यही पैटर्न रिपीट करना है 8, 9, 10 और 11 के लिए. तो मैं ये चारों जो रोज़ हैं इसे कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे हमने क्या करना है. सो आई कंप्लीट दीज 4 रोज़ बाय फॉलोइंग द सेम पैटर्न एंड देन आई मीट यू बैक हियर टू शो यू व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट. Here I have completed row number 8, 9, 10 and 11. मैंने रो नंबर 8, 9, 10 और 11 कंप्लीट कर लिया है. मैंने सिर्फ एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच किया है हर स्टिच की बैक लूप में. आई हैव डन 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ द बैक लूप्स ऑफ द स्टिचेस दैट आई हैड एंड आई हैव कंप्लीटेड टिल रो नंबर 11. नाउ वी हैव टू चेन 1 एंड फास्टन ऑफ. अब हम चेन 1 करके फास्टन ऑफ कर लेंगे और इसी तरीके का हमने एक और पीस रेडी कर लेना है सेम पैटर्न यूज़ करके. सो वी नीड 2 pieces. So using the same pattern we need to make 1 more piece. तो इसी तरीके का आपने एक और पीस रेडी कर लेना है. I have already made the piece ready here. तो मैंने जो दूसरा पीस है वो रेडी करा हुआ है ऑलरेडी. यहाँ पे आपको यही सेम पैटर्न यूज़ करके एक और पीस रेडी कर लेना है. नाउ वी नीड टू अलाइन दीज 2 pieces टुगेदर एंड जॉइन देम. तो अब हमको एक साथ अलाइन करके इसे जॉइन करना है. सो वी नीड टू मेक श्योर दैट वी आर प्लेसिंग इट इन करेक्ट डायरेक्शन. ये देखिए ये जो ओपनिंग है ये ओपनिंग के ऊपर ये ओपनिंग आनी चाहिए. सो दिस ओपनिंग शुड बी ऑन द ओपनिंग. वी शुडंट कीप इट लाइक दिस. तो इस वे में हमने नहीं रखना कि एक साइड बंद है और एक साइड ओपन है. सो वी आर नॉट सपोज टू कीप इट दिस वे दैट वन साइड इज ओपन एंड द अदर इज क्लोज. वी नीड टू कीप बोथ द ओपनिंग्स टुगेदर. तो दोनों जो ओपनिंग्स हैं वो हमें साथ में रखनी है इस तरीके से. ये देखिए दोनों पीसेस मेरे. और अब हमें इसको पूरा जॉइन कर देना है. ये दोनों पीसेस को हमने साथ में जॉइन कर देना है. सो वी नीड टू जॉइन बोथ द पीसेस टुगेदर. आई विल बी यूजिंग माय yarn needle and I'll be using slip stitches to join both the pieces together. You can even use tapestry needle or needle and thread and sew both the pieces together. तो आप किसी तरीके से भी इसे कर सकते हैं. नीडल और थ्रेड की मदद से भी इसे सिल सकते हैं. जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो वो वाला वे आप यूज़ कर सकते हैं. तो मेरे लिए स्लिप स्टिचेस मुझे ज़्यादा बेटर लगती हैं. तो मैं स्लिप स्टिच करके इन दोनों पीसेस को साथ में जॉइन कर लूँगी. सो विल मेक अ स्लिप नॉट एंड ऐड द yarn. स्लिप नॉट बना के मैं yarn को ऐड कर लूँगी. सो आई बी एडिंग इट टू द कॉर्नर हियर. तो ये जो कॉर्नर है इस पे मैं पहले बैक लूप पहले जो मेरा पहला वाला पीस है उसकी बैक लूप में मैं जा रही हूँ. सो फर्स्ट piece I'll be going in the back loop and the second piece I'll be going in the front loop and I'll be adding my slip knot and then chain 1 to secure it. chain 1 करके इसको secure कर लेंगे. and now we need to just keep doing slip stitches until both the pieces are joined together. तो हमें सिर्फ slip stitches करके दोनों pieces को साथ में join कर लेने. and I'll be working over the yarn tails that I have here so that it gets weaved in. तो ये जो yarn tails है इनके ऊपर ही मैं काम कर लूँगी ताकि इनके ऊपर ही स्लिप स्टिचेस कर दूँगी ताकि ये सिक्योर हो जाए. सो वील गो इनटू द फ्रंट लूप इनटू द बैक लूप ऑफ द फ्रंट पीस. जो फ्रंट पीस है उसकी बैक लूप में जाना है एंड जो बैक पीस है उसके फ्रंट लूप में जाना है. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट एक बार आप करने लगोगे तो ईजिली हो जाएगा. तो ये जो तीनों yarn tails है इनके ऊपर ही मैं स्लिप स्टिचेस कर रही हूँ. just slip stitch. इसी तरीके से back loop, front loop and just push the yarn tails and slip stitch. Then again back loop, front loop and slip stitch. अभी जो yarn tails है इसको मैं अंदर की तरफ डाल रही हूँ और अब मैं स्लिप स्टिचेस करके इसे जॉइन कर दूँगी. बैक लूप, फ्रंट लूप एंड स्लिप स्टिच. इसी तरीके से बैक लूप में जाएंगे, पहले पीस के बैक लूप में, दूसरी पीस के फ्रंट लूप में और स्लिप स्टिच कर देंगे. अगर आप स्लिप स्टिच नहीं करना चाहते हो तो जैसे मैंने पहले बोला था आप सुई धागे की मदद से भी दोनों पीसेस को सिल सकते हो. टेपेस्ट्री नीडल और जो सेम कलर की yarn यूज़ करके भी आप इन दोनों पीसेस को साथ में स्टिच कर सकते हो. सो इट्स टोटली योर चॉइस वेदर यू वांट टू
stitch it with the tapestry needle and yarn, or you want to use needle and thread. It's totally your choice, or whether you want to do it this way like I am doing with slip stitches. It gives a very neat finish when you do it with slip stitch, I feel so. So let's do this. We have to just keep doing slip stitches and join both the pieces together. And once I reach the corner, then I'll show you what you have to do at the corner. मैं कॉर्नर पे पहुंच के फिर आपको दिखाती हूँ आपने कॉर्नर में क्या करना है. तो मैं ये वाली साइड जॉइन करके जब मैं टॉप पे पहुंच जाऊँगी एकदम कॉर्नर पे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हमने क्या करना है. सो हियर आई हैव रीच्ड द लास्ट स्टिच दैट आई हैव. तो ये जो लास्ट स्टिच मेरी यहाँ पे है दोनों पीसेस की, मैं वहाँ तक पहुँच गई हूँ. सो आई विल गो इन टू द back loop of the front piece and front loop of the back piece. I'll slip stitch and then I'll chain one. यहाँ पे हम एक चेन बनाएंगे and उसी सेम स्टिच में फिर से हम slip stitch करेंगे. So we'll go into both the loops again, front and back, and we'll slip stitch. And now we'll slip stitch on this side. तो अब इस साइड पे हमने slip stitch करना है. Here we don't have any front loops or back loops, so randomly we have to just go in the places that we get in both the pieces and we have to slip stitch. तो स्टिचेस के बीच में जो जगह है यहाँ पे उसमें हम स्लिप स्टिच करके जॉइन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई बैक लूप और फ्रंट लूप तो है नहीं, क्योंकि ये स्टिचेस के साइड पे आती है. तो यहाँ पे हम बस दोनों पीसेस के अंदर जाएंगे नीडल को डाल के और स्लिप स्टिच कर देंगे. सो वी हैव टू जस्ट गो इन एंड स्लिप स्टिच. सो मेक श्योर दैट यू आर गोइंग इन बोथ द पीसेस. तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आप दोनों पीसेस में नीडल को डाल रहे हो, नहीं तो उस पोर्शन में जहाँ पे आपकी नीडल दोनों पीसेस में नहीं गई है वो प्लेस ओपन रह जाएगा. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर पुटिंग द नीडल इन बोथ द पीसेस व्हाइल यू आर जॉइनिंग द पीसेस टुगेदर. तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हम इसे पूरा स्टिच कर देंगे. सो आई विल डू द एग्जैक्ट सेम एट द कॉर्नर्स what I did here. Chain one and we have to slip stitch twice at the corner and at the last corner as well. तो ये जो corner है यहाँ पे भी हम वही चीज़ करेंगे. So I'll join this to all the way around and join both the pieces together and I'll meet you back when I complete joining both the pieces. तो जो लास्ट यहाँ पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ तक पहुँच के फिर दिखाती हूँ आपको आगे क्या करना है. इसे चारों तरफ से जॉइन कर दिया है. जॉइन बोथ द पीसेस टुगेदर एंड आई हैव रीच द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड. तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था इसे जॉइन करना, मैं वो वाले कॉर्नर पे पहुँच गई हूँ. सो हियर वी हैव टू गो इन टू द फर्स्ट स्लिप स्टिच दैट वी हैड मेड. तो जो पहला हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाया था हम उसमें जाके एक स्लिप स्टिच करके इसे जॉइन कर देंगे. सो विल स्लिप स्टिच टू द फर्स्ट स्लिप स्टिच दैट वी हैड मेड, चेन वन एंड फास्टन ऑफ. चेन वन करके हम फास्टन ऑफ कर लेंगे. And we can use tapestry needle to weave in the yarn tail that we have. तो इसको पहले टाइटन कर देंगे. just pull it and tighten it up. इसको पुल करके टाइटन करने के बाद अब हम इसे वीव इन कर लेते हैं. और ये देखिए हमारा क्यूट सा एयरपॉड पॉकेट रेडी हो गया है. तो चलिए इसे वीव इन कर लेते हैं जल्दी से. ये मैंने टेपेस्ट्री नीडल ले ली है और मैं पहले नीडल को स्टिचेस के बीच में डाल रही हूँ जहाँ पे मुझे ये वीव इन करना है. क्योंकि जो यार्न टेल है वो छोटी है, तो पहले मैं नीडल को स्टिचेस के बीच में डाल रही हूँ और फिर मैं इसे थ्रेड कर दूँगी. सो whenever my yarn tail is small, I put the needle in the stitches where I want my yarn tail to go in and then I thread my needle and just pull it through. तो इस तरीके से हम पुल कर लेंगे और ये हमारी जो yarn tail है ये वीव इन हो जाएगी इस तरीके से, और जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर देंगे. सो लेट्स कट द एक्स्ट्रा yarn tail that's coming from here and we are done. देखिए हमारा क्यूट सा एयरपॉड केस हो गया है रेडी. इस तरीके से आप अपने एयरपॉड्स को इसके अंदर डाल सकते हो. ये देखिए इस तरीके से इसके अंदर चले जाएंगे और ये क्यूट सा एयरपॉड पॉकेट रेडी है. और इस तरीके से मैंने ये भी बनाया था आईफोन केस, आईफोन पॉकेट भी मैंने बनाया था सेम. ये इसका मिनी वर्जन है एयरपॉड्स के लिए, ये फ़ोन के लिए है. अगर आपने इसका ट्यूटोरियल नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ज़रूर देखिएगा. इसका ट्यूटोरियल भी मैंने अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पे. और इसी से इंस्पायर होकर मुझे आइडिया आया कि ऐसा सेम हम मिनी वर्जन बना सकते हैं अपने एयरपॉड के लिए.
तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कीप क्रोशिंग, स्टे सेफ, बी हैप्पी. बाय बाय.